is the chapter 12 of class 12, aldehydes and ketones. Now when we are doing aldehydes and ketones, इस chapter को divide किया गया है two parts में. The first part we will study aldehydes and ketones because इसके general methods of preparation, इसकी chemical properties काफी कुछ जो है वो almost same है. और carboxylic acid जो है that is in the second part. तो second part में carboxylic acid के methods of preparation और properties थोड़ी सी different है than aldehydes and ketones. ठीक है. Now aldehydes and ketones को हम part A में पढ़ेंगे और carboxylic acids को हम part B में पढ़ेंगे. Let's go on to the first part. जो aldehydes and ketones है वो क्या है? They are functional isomers of each other. Aldehydes and ketones are functional isomers of each other. Right? When we are talking of aldehydes, दोनों में इनको हम collectively एक और नाम देते हैं. They are also known as carbonyl compounds. Carbonyl compounds इनको क्यों बुला रहे हैं? Due to presence of C double bond O in both the cases. ठीक है? This is the functional group which is going to be present. Over here, the carbon is sp2 hybridized. ठीक है? Because it has a double bond bonding with oxygen. When aldehydes we are talking of, then one of the group is an alkyl group. अगर CH3 की जगह हम general इसका वो दे दें तो alkyl group के साथ इसको denote कर सकते हैं. And the other one that is H, but the functional group remains same, that is C double bond O. Whereas when we are talking of ketones, तो ketones के पास दोनों ही alkyl groups होते हैं, right? Both the groups are alkyl groups. Because इन दोनों में C double bond O है, that is the reason कि इनके methods of preparations काफी हद तक same है and also इनकी properties भी काफी हद तक same है due to the similar functional group, right? Now nomenclature जब हम इसकी करते हैं aldehydes and ketones की, so let's see how do we name them. There are a few जिसकी common names भी आपको पता होनी चाहिए. Aldehydes पहले कर रहे हैं, जैसे HCHO हो गया, इसकी common name is formaldehyde and IUPAC name is methanol. Because it has only one carbon atom तो mix लग गया और aldehyde के लिए हम लोग अल लगाते हैं as a secondary suffix और primary suffix single bond है. There is no other carbon atom तो इसलिए इन लगा रहे हैं. Okay. Second one is CH3CHO. This is known as acetaldehyde because of the acetyl group attached. Acetaldehyde. ठीक है? और ये जो acetaldehyde है इसे हम IUPAC nomenclature में क्या बुलाएंगे? Ethanol. ठीक है? It is known as ethanol. Next member. So this is how we will keep on increasing CH3, CH2, CHO, propynaldehyde. Okay, this is going to be the common name.
and the IUPAC name that is going to be propanol. क्लियर हो गया? अब क्यों हम यहाँ पे इसको एज पेरेंट चेन ले रहे हैं? बिकॉज ये एल्डिहाइड एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है. तो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप मींस इट विल ऑलवेज कम एट द एंड ऑफ द चेन, सेंटर में नहीं आ सकता. तो क्योंकि ये एंड ऑफ द चेन में आता है तो इसको हम पेरेंट चेन में इंक्लूड करते हैं ऑलवेज. सो इस करके इसका नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 2 कार्बन एटम्स, सो इथेनॉल हो जाएगा. और यहाँ पे हम उसे अगेन अगर इंक्लूड करें तो 3 हो गया, राइट? अब इफ वी हैव कंपाउंड लाइक दिस, तो इसका हम क्या नाम देंगे? 1 2 3 4 IUPAC नेम ब्यूटेन 1,4-diol. ठीक है? Because there are 2 aldehyde groups present. पर अगर इसकी जगह कंपाउंड हमारे पास ये हो, then how are we going to name this? Because यहाँ पे हम तीनों फंक्शनल ग्रुप्स को तो मेन चेन में इंक्लूड नहीं कर सकते. या हम इसको और इसको कर सकते हैं, या हम इसको और इसको कर सकते हैं, सबको नहीं करते. तो इन दैट केस हम तीनों को ही पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे. वी विल नंबर द कंपाउंड एज 1 2 3. ठीक है? And naming IUPAC nomenclature will be given as propane 1 2 3 tricarbaldehyde. Propane 1 2 3 tricarbaldehyde. This is the IUPAC name. Right? In a similar manner, if we go on to the ketones, ketones में minimum number of carbon atoms present is going to be 3. Less than 3 present नहीं हो सकते. Because ketones का जब हम nomenclature देखते हैं, ketones is a non-terminal functional group. It will always come in the middle of the parent chain. तो minimum number of members is going to be 3. ठीक है? ये लोएस्ट मेंबर है. जैसे यहाँ पे सीरीज का लोएस्ट मेंबर ये है होमोलोगस सीरीज का. पता है ना होमोलोगस सीरीज क्या होता है? विच हैव द सेम फंक्शन ग्रुप और कंसेक्यूटिव ग्रुप CH2 ग्रुप से डिफर करता है. तो इसका होमोलोगस सीरीज का सबसे छोटा मेंबर ये है. कॉमन नेम एसीटोन. ठीक है? एंड IUPAC नेम प्रोपेन 2-on. प्रोपेनोन भी बोल सकते हैं. प्रोपेन 2-on. ठीक है? क्लियर हो गया? सो दिस इज व्हाट एसीटोन इज. उसके बाद यू कीप ऑन increasing the number of carbon atoms. इसमें हमने इसको फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट नंबर देना है जब हम पेरेंट चेन को नंबर कर रहे हैं. सो 1 2 3 and 4. This is going to be what? Butane 2-on. तो इस तरह से हम इसकी नंबरिंग करते हैं, नेमिंग करते हैं. ठीक है? Then next if we are having aromatic compounds. So let's go on to the nomenclature of aromatic compounds. Aromatic compounds. सबसे पहले हम सबसे छोटा कंपाउंड करेंगे CHO.
इसमें कॉमन नेम भी IUPAC नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली हम इसको नेम कर रहे हैं. इट इज नोन एज बेंजेल्डिहाइड. ठीक है. अब अगर एक कार्बन एटम से ज्यादा है साइड चेन में तो इसको हम एज फेनाइल ग्रुप लेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH2CHO. तो यहां पे हम नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 2 फिनाइल इथेनल. ठीक है. सिमिलरली अगर कंपाउंड ऐसा है, कॉमन नेम तो इसका है सिनेमेल्डिहाइड. ये जो सिनेमन होता है, पता है ना सिनेमन क्या होता है? दालचीनी. जो दालचीनी में खुशबू आती है, दैट इज ड्यू टू दिस एक्सट्रैक्ट सिनेमेल्डिहाइड. IUPAC नॉमेनक्लेचर इसका क्या होगा? 1 2 3. सो इट इज 3 फिनाइल prop 2ene prop 2ene 1 तो इनर भी लिख सकते हैं हम इसको. 3 फिनाइल prop 2ene 1 ठीक है. सो दिस इज सिनेमेल्डिहाइड. उसी तरह से कीटोन की नेमिंग हम कैसे करते हैं? सबसे छोटा मेंबर क्या नाम देंगे हम इसको? कॉमन नेम क्या है इसका? एसिटोफिनोल. कॉमन नेम इज गोइंग टू बी एसिटोफिनोल. राइट. और अदरवाइज इसका नेम है मिथाइल फिनाइल कीटोन. Methyl phenyl ketone. If we have more number of carbon atoms in the side chain, that is CO, CH2, CH3, then this is known as propiophenone. ठीक है. और इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? इथाइल फिनाइल कीटोन. सॉरी, कॉमन नेम. IUPAC नेम तो हम इस तरह से कर रहे हैं ना, एसिटोफिनोन और प्रोपियोफिनोन. इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर हो गया. तो दूसरा नाम इसका जो कॉमन नेम है वो क्या आ जाएगा? दिस इज इथाइल ग्रुप. सो इथाइल फिनाइल कीटोन. ओके. सो इस तरह से हम इसकी नॉमेनक्लेचर करते हैं. नेक्स्ट इज आइसोमेरिज्म इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. आइसोमेरिज्म, द फर्स्ट काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म जो कि ये एग्जिबिट करता है, दैट इज चेन आइसोमेरिज्म. चेन आइसोमेरिज्म में द चेन इज गोइंग टू बी डिफरेंट. Chain isomerism में the chain that is going to be different. For example, if we have CH3, CH2, CHO, ठीक है.
इसका IUPAC नेम क्या आएगा? ब्यूटेनल। ओके, एंड इफ वी हैव अगर ये है तो IUPAC नेम क्या आएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका सेम है ना दोनों का, सो दिस इज गोइंग टू बी 2-methyl प्रोपेनल। सो बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, किसमें? चेन में, इसलिए इसको हम क्या बुला रहे हैं? चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म जनरली एलिफैटिक एल्डिहाइड्स में नहीं होता। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमने बोला कि जो एलिफैटिक है उसमें ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए इसको ऑलवेज नंबर 1 दिया जाता है और इसको पैरेंट चेन में इंक्लूड किया जाता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स में हो सकता है, जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है ये, ठीक है, सो दिस इज व्हाट? ऑर्थोमिथाइल बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ऑर्थोमिथाइल बेंजल्डिहाइड। ठीक है, नाउ इसमें द पोजीशन ऑफ CH3 कैन चेंज। जैसे ये ऑर्थोमिथाइल है, ये मेटा में भी जा सकता है, ठीक है, दिस इज मेटा मिथाइल बेंजल्डिहाइड, और ये पैरा में भी जा सकता है। पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बट पोजीशन आइसोमेरिज्म इज मोर कॉमन इन कीटोन्स। फॉर एग्जाम्पल, we have this. What is going to be the IUPAC name? 1, 2, 3, 4, 5. Pentane 2-on. Sorry, 3-on. Pentane 3-on. ठीक है, अब अगर इसका हम पोजीशन चेंज कर दें, then what is this? Pentane 2-on. So the position has changed. In case of ketones, इसको हम लोग मेटामेरिज्म भी बुला सकते हैं। In case of ketones, इसे हम मेटामेरिज्म भी बुला सकते हैं। क्यों बुला रहे हैं मेटामेरिज्म? क्योंकि हमने पढ़ा है कि मेटामेरिज्म में the number of alkyl groups on both the sides of functional group is different. वही मेटामेरिज्म होता है ना कि जब नंबर ऑफ alkyl groups फंक्शनल ग्रुप की दोनों साइड अलग हो तो उसे हम मेटामेरिज्म भी बुलाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो कार्बन के इस साइड भी 2 है, कीटोन के इस साइड भी 2 है, और कीटोन के इस साइड भी 2 है। Whereas जब हम यहाँ देख रहे हैं तो कीटोन के एक साइड only 1 alkyl group is present, और दूसरी साइड a longer alkyl group is present with 3 carbon atoms, right? So in this case, this can also be known as metamerism, when the number of carbon atoms on both the side of functional group is different. ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड आता है functional isomerism,
ये हम ऑलरेडी इंडिकेट कर चुके हैं, फंक्शनल आइसोमरिज्म ऑलरेडी इंडिकेट कर चुके हैं कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। तो अगर हमारे पास है CH3 CH2 CHO एल्डिहाइड, तो इसका फंक्शनल आइसोमर होगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका क्या होगा 1 2 3 4 5 6 एंड O। उसी तरह से इसका भी यही आ गया 3 और 3 6 and O. So they have the same molecular formula but they have different structural formula. ठीक है? So this is an introduction of aldehydes and ketones. Let's go on to the methods of preparation. Methods of preparation को भी हमने 3 में डिवाइड करना है। फर्स्ट हम लोग करेंगे कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। फिर हम करेंगे कुछ ऐसे रिएक्शन जिससे हम कीटोन्स प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एल्डिहाइड्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और फिर हम करेंगे कुछ ऐसे रिएक्शंस जिससे हम सिर्फ कीटोन्स प्रिपेयर कर सकते हैं और एल्डिहाइड्स प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो फर्स्ट जो हम कर रहे हैं that is common methods of preparation of both aldehydes and ketones. इसकी काफी रिएक्शंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसपे जो हम फर्स्ट प्रिपरेशन करेंगे दैट इज फ्रॉम अल्कोहल्स दो तरह से अल्कोहल से हमने प्रिपेयर करा था। फर्स्ट वॉज ये अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ऑक्सीडेशन of alcohols using oxidizing agents like K2Cr2O7, Na2Cr2O7 और एक और क्या था PCC pyridinium chlorochromate और एक और करा था कोलिन्स रिएजेंट। क्या होता है कोलिन्स रिएजेंट? पिछले चैप्टर में कराया क्या नहीं? क्रोमियम डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ pyridine करा नहीं था कोलिन्स रिएजेंट। HCl in presence of pyridine। जब हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ज्यादा चांसेस रहते हैं, बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ज्यादा चांसेस रहते हैं कि एसिड बन जाए। अगर हमको रिएक्शन एल्डिहाइड तक ही फुल स्टॉप लगाना है तो हम या PCC यूज कर सकते हैं या हम कोलिन्स रिएजेंट यूज कर सकते हैं। इसमें जो pyridine होता है दिस एक्ट्स एज एन इनहिबिटर या आप कह सकते हो पॉइजन। इनहिबिटर या पॉइजन क्या ये बेसिकली कैटलिस्ट की तरह ही हम यूज कर रहे हैं ना, ताकि हम रिएक्शन को ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकें। तो अगर हमें रिएक्शन कहीं स्टॉप करनी है तो हमें पॉइजन देना पड़ेगा उसमें या इनहिबिटर लगाना पड़ेगा। तो वो इनहिबिटर हम इसमें pyridine लगा रहे हैं सच दैट जो रिएक्शन है वो स्टॉप कर जाए कहां पे? एल्डिहाइड पे। ओके, सो रिएक्शन क्या है इसमें अगर आपको याद है तो प्राइमरी अल्कोहल्स एल्डिहाइड्स देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल्स कीटोन्स देते हैं और टर्शियरी अल्कोहल्स एल्कीन्स देते हैं। दे डू नॉट अंडरगो, बिकॉज उसमें आप देखोगे कि अल्फा हाइड्रोजन एटम एब्सेंट है, इसलिए वो एल्डिहाइड्स या कीटोन्स देने की बजाय एल्कीन्स देंगे। ओके, सो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल आ गया, ऑक्सीडेशन with using any of the oxidizing agents
ये एल्डिहाइड देगा, ओके। सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देगा। अब व्हाट इज द अल्फा हाइड्रोजन जो कि हम बात कर रहे थे, ये अल्फा हाइड्रोजन है। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। उसके साथ जो कार्बन एटम अटैच होता है उसको हम अल्फा कार्बन एटम बोलते हैं। उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच होगा उसको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो ये अल्फा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन को रिमूव कर दे रहा है। वही देख रहे हो ना आप यहाँ पे CH3CHO, एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो जा रहा है। उसी तरह से इसके पास भी एक अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। पर जब हम टर्शरी देखते हैं तो आप देखोगे कि उसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन है वो दैट विल रिजल्ट इन व्हाट? ऑक्सीडेशन इन फैक्ट इज नॉट ओनली पॉसिबल जब हम इसकी K2CR7 या किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास एल्कीन आ जाता है। क्योंकि जो ये ऑक्सीजन है उसको कहीं से हाइड्रोजन चाहिए, वो ये वाला हाइड्रोजन जो है वो एलिमिनेट कर लेगा। ठीक है, सो हमारे पास एल्कीन आ जाता है। क्लियर हो गया? अब अगर सपोज हमारे पास है, ये वाली रिएक्शन भी हमने करी है, साइक्लोहेक्स 2-ene-1-ol, दिस इज साइक्लोहेक्स 2-ene, ठीक है, साइक्लोहेक्स 2-ene-1-ol, ओके। जब हम पीसीसी के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं, आइए इसका नेम लिख लिया, राइट। तो जब हम इसको पीसीसी के साथ रिएक्शन करते हैं तो देखो इससे भी डबल बॉन्ड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। सो दिस इज साइक्लोहेक्स 2-ene-1-ol। ठीक है, सो पीसीसी की प्रेजेंस में डबल बॉन्ड को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और ये हमने लास्ट वाले चैप्टर में देखा है कि हम चाहे जितनी मर्जी लंबी चेन ले लें और उसमें कहीं पे भी डबल बॉन्ड हो, जब हम पीसीसी यूज करते हैं तो वो डबल बॉन्ड इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? सो ये फर्स्ट रिएक्शन है अल्कोहल से। सेकेंड रिएक्शन ऑल्सो वी हैव डन डिहाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स। सेकेंड रिएक्शन कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। अगर आपको याद है तो ये रिएक्शन हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के साथ करी थी, कॉपर के साथ एट अ टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन। ये वाली रिएक्शन भी हमने अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में करी है। सो इफ यू टेकिंग प्राइमरी तो एल्डिहाइड आएगा, सेकेंडरी तो कीटोन आएगा और टर्शरी तो एल्कीन आएगा। ठीक है, सो ये आ गया CH3 CH2, दिस इज प्राइमरी कॉपर के साथ एट 573 केल्विन हमारे पास एसिटाल्डिहाइड आ जाता है। अगर हम सेकेंडरी ले रहे हैं अगेन कॉपर के साथ एट 573 केल्विन, तो ये हमें कीटोन दे देगा। और अगर टर्शरी ले रहे हैं
तो ये एल्कीन देता है। रिएक्शन कंडीशंस इन ऑल द थ्री सेम रखी है हमने। ठीक है, सो ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड से जब हम रिएक्शन करते हैं तो इसमें डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस होती है। ठीक है, सो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस, ए रिएक्शन हम करेंगे, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय कैटालिटिक डीकंपोजिशन ऑफ एसिड्स। और ये जो कैटालिटिक डीकंपोजिशन होता है, इसमें जनरली जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं दैट इज गोइंग टू बी MnO, मैंगनीज ऑक्साइड। नाउ इन दिस केस दो एसिड्स की रिएक्शन होती है, वो दोनों रिएक्शन, जो दोनों एसिड्स हैं वो सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे हम ले रहे हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड। कहां पे होती है फॉर्मिक एसिड? किसमें प्रेजेंट होती है? स्टिंग ऑफ द रेड एंट। रेड एंट्स जब काटती है तो खारिश होती है ना, इरिटेशन होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एसिड व्हिच इज प्रेजेंट, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, इसकी जब हम डीकंपोजिशन करते हैं मैंगनीज ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो इससे एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ठीक है, सो आपके पास बच जाएगा, एक ये निकल गया CO2, एक हाइड्रोजन यहां से और OH यहां से। सो हमारे पास क्या बच गया? HCHO, फॉर्मैल्डिहाइड बच गया ना। डीकार्बोक्सिलेशन हम इसको क्यों बुला रहे हैं? बिकॉज रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकिंग प्लेस। Now if we are taking a combination of two different acids, और दूसरी एसिड हम ले लेते हैं CH3 COOH, सेम फंडा यूज करना है इसमें भी। मैंगनीज ऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, अगेन ये देखो ये निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन निकल गया, ये OH निकल गया, तो हमारे पास क्या बचा? CH3 CHO। ठीक है, अब अगर दोनों मॉलिक्यूल्स हम एसिटिक एसिड की ले लें तो कीटोन बन जाएगा। ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, सो हमारे पास क्या बचा? CH3 C double bond O CH3, so we get a ketone। ठीक है, इज इट क्लियर? सो दिस इज कैटालिटिक डीकंपोजिशन। दूसरी है डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ एसिड, ये भी डीकार्बोक्सिलेशन ही है। डिस्टिलेशन of calcium salts of acids। इसमें हमने जैसे यहाँ पे हमने फॉर्मिक एसिड लिया है तो नीचे हम उसका कैल्शियम सॉल्ट ले लेंगे, कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक है, कैल्शियम फॉर्मेट क्या हुआ? दिस इज कैल्शियम फॉर्मेट। सो कैल्शियम फॉर्मेट की जब हम डिस्टिलेशन करते हैं तो इसमें से कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो अ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इस तरह से
कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव हो गया तो हमारे पास क्या बचा है? HCHO। इज इट क्लियर? अब अगर ये हमने क्या लिया है कैल्शियम फॉर्मेट, अगर हम कैल्शियम एसिटेट ले लेंगे तो देखो क्या बनता है, कीटोन बन जाएगा। डिस्टिल करो, ये कैल्शियम कार्बोनेट निकल गया और हमारे पास बच रहा है कीटोन। राइट, यू आर गेटिंग कीटोन। सो ये यू कैन सी कि ये वाला जो है मेथड, इससे हम एल्डिहाइड्स बहुत इफेक्टिवली प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बिकॉज अगर हम कैल्शियम एसिटेट ले रहे हैं तो कीटोन बनेगा। सिर्फ एक ही एल्डिहाइड इससे प्रिपेयर होता है व्हिच इज फॉर्मेल्डिहाइड। अदरवाइज हम यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज ही कर सकते हैं ना। अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज कर देंगे, सपोज यहाँ पे हमने ले लिया CH3CH2 और यहाँ पे भी ले लिया CH3CH2, तो यहाँ पे भी तब भी कीटोन ही आएगा। वी विल नॉट गेट एन एसिड इन दिस थिंग एल्डिहाइड। ठीक है, क्लियर हो गया? सो दिस इज द सेकेंड मेथड। द थर्ड मेथड इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से हम पहले एल्काइन से प्रिपेयर करते हैं बाय एसिड हाइब्रिडेशन ऑफ एल्काइंस। राइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास एसिटिलीन, इथाइन, इसकी हमने हाइड्रेशन कर दी है इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, सो H2SO4 के प्रेजेंस में एंड HgSO4 की प्रेजेंस में करते हैं। ओके, सो मार्कोनी-कॉक्स रूल, ये तो चलो सिमेट्री कह रहे हैं, इसमें से H पॉजिटिव एक पे चला जाएगा और OH दूसरे पे चला जाएगा। सो हमारे पास ये विनाइल अल्कोहल आ जाता है। दिस इज नोन एज विनाइल अल्कोहल। IUPAC नेम इसका क्या होगा? इथेनॉल। इथेनॉल, ठीक है। और फिर उसके बाद ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट है, तो इसकी रीअरेंजमेंट होती है टू गिव अस, देखो अब इसमें क्या होने वाला है कि ये डबल बॉन्ड यहां ट्रैवल करेगा, ट्रांसफर होगा बाय इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और ये हाइड्रोजन यहां होगा। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू गिव अस CH3C double bond ONH. Let's take a bigger alkyne, unsymmetrical ले रहे हैं हम, CH3C triple bond CH, unsymmetrical alkyne in presence of H2SO4, अब इसकी हाइड्रेशन होगी तो नेगेटिव पार्ट विल अटैक एट द कार्बन एटम विद लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। सो हमारे पास जो इंटरमीडिएट आएगा ये आना चाहिए, यही आएगा ना। ओके, IUPAC नेम क्या होगा? propene 2-ol, propene 2-ol,
ठीक है, अब यहां से डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो रहा है, यहां से हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हो रहा है। सो हमारे पास इसका एक और फॉर्म आ जाता है विच इज अ कीटोन। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं और इस आइसोमेरिज्म को हम क्या बुलाते हैं? टॉटोमेरिज्म। When simultaneous shifting of the pi electron cloud and proton takes place, उसे हम टॉटोमेरिज्म बुलाते हैं। इसमें जो ये वाला फॉर्म है जिसमें अल्कोहल और ईन है, इसे इनोल बुलाएंगे, और जिसमें कीटो है उसे कीटो बुलाएंगे, एंड दिस इज नोन एज कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। Both the forms are in dynamic equilibrium with each other. What do you understand by dynamic equilibrium? They both keep converting, एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। So this is why हम इसको बोलते हैं कि they are known as keto-enol tautomerism। 11th में क्या हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है? Is it clear? आ गया ये समझ? Any problem in this? Then the next second हम लोग करेंगे again a very very important reaction, ozonolysis of alkenes। इसी के अंदर आता है हाइड्रोकार्बन्स के अंदर ही सेकेंड में। ओजोनोलिसिस का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही ऑक्सीडेशन बाय द एडिशन ऑफ ओजोन, राइट? सो हम एल्कीन्स को इसमें रिएक्ट करेंगे विद ओजोन। फंडा इसका बहुत सिंपल है, किस तरह से आपने प्रोडक्ट्स इसमें मैनिपुलेट करने हैं वो देखो। तो सबसे पहले हम सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओजोन, 3 ऑक्सीजन हमको यहाँ पे ऐड करने हैं। तो एक ऑक्सीजन हम छत पे ऐड करेंगे और 2 ऑक्सीजन हम फ्लोर पे ऐड करेंगे। तो आप देखोगे कि ये घर की तरह बन जाता है। क्या बोला मैंने? डबल बॉन्ड बीच में से उड़ जाएगा, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड भी रहेगा तो कार्बन की वैलेंसीज ज्यादा हो जाएगी और हम स्ट्रक्चर को जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे। तो दोनों ये डबल बॉन्ड्स हट जाएंगे। ओजोन में एक ऑक्सीजन रूफ पे छोटे होते बनाते थे ऐसे घर, ठीक है ना, और 2 ऑक्सीजन फ्लोर पे ऐसे ही घर बनाते थे। जब हमने सबसे पहले ड्राइंग सीखी थी, ये बना दी यहाँ पे 2 खिड़कियां और ये बना दिया दरवाजा, ऐसे बनाते थे। तो वही बन रहा है यहाँ पे। तो ओनली थिंग इज कि ये वाला बॉन्ड एल्कीन्स में नहीं आता, ये बॉन्ड एल्काइन्स के जब आप ओजोनोलिसिस करते हो तो उसमें आता है, बट एल्काइन्स की ओजोनोलिसिस हमें एल्डिहाइड्स नहीं देती, तो इसलिए उसको हमने यहाँ पे नहीं टच करना है, ठीक है? वो आपने क्लास 11 में करा हुआ है, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्काइन्स। सो ये बन गया। अब जब हम ये एक अनस्टेबल, दिस इज नोन एज इथाइलीन ओजोनाइड, इथाइलीन ओजोनाइड। अब जब इसकी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, तो ये जो कंपाउंड है ये ब्रेक हो जाएगा। एक हाउ डू वी डू इट कि ये वाटर हमने डाला, फ्लड आ गया, फ्लड आता है तो सबसे पहले दीवारें टूट जाती है, तो दोनों दीवारें फट गई। अब क्या बचा? ये अलग हो गया है घर, ये अलग हो गया है, तो इस वाली साइड हमारे पास बचा HCHO और इस साइड बचा HCHO, ठीक है? सो वी गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCHO. Now if you are taking a bigger alkene,
इसके आपने कैसे मैनिपुलेट करने हैं? इट्स वेरी इजी। यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इस बॉन्ड के इस साइड भी ऑक्सीजन लग जाना है, इस बॉन्ड के इस साइड भी ऑक्सीजन लग जाना है। ठीक है, तो आपके पास प्रोडक्ट्स इसके क्या आने चाहिए? CH3CHO, HCHO। ठीक है, और अगर आपको रिएक्शन शो करनी है तो रिएक्शन भी हम शो कर सकते हैं। क्योंकि जो ओजोन होगा वो हमेशा डबल बॉन्ड के अराउंड ही ऐड होगा, बाकी नहीं हमने टच करना कुछ भी। और ब्रेकिंग भी हमेशा इसी तरह से होगी, जब आप वाटर के साथ इसको रिएक्ट कर रहे हैं। राइट, सो CH3CHO प्लस HCHO। अब अगर हमें कीटोन चाहिए तो हमें इस कार्बन एटम के साथ भी दो एल्काइल ग्रुप्स चाहिए, इस कार्बन एटम के साथ भी दो एल्काइल ग्रुप्स चाहिए। अगर हमें दोनों कीटोन्स चाहिए तो हम कंपाउंड क्या लेंगे? कर लो इसके प्रेडिक्ट। यहां से ये टूट गया, CH3 C double bond O, CH3 C double bond O, you will get two molecules of ketones. ठीक है, is it clear? Then the last जो है that is from Jem Dye-Lyles, the fourth method of preparation. Zinc तो कैटलिस्ट है ना, zinc is going to behave as a catalyst to catalyze the reaction. ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेगा नहीं इसमें से, 3 ऑक्सीजन निकल रहे हैं इसमें, सॉरी 1 ऑक्सीजन निकल रहा है, वो कहाँ जाएगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाएगा, और वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ जिंक बनाता है। जिंक इज गोइंग टू बी यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। ओके, देन द फोर्थ मेथड इज जेम डायलाइड्स। जेम डायलाइड्स कौन से होते हैं? जिसमें बोथ द हाइड्रोजन्स आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम। 1,1 डाइक्लोरो इथेन। इसे अगर हम एक्वस KOH के साथ या एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करें तो दोनों क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे टू गिव अस एन अनस्टेबल प्रोडक्ट। ठीक है, फिर ये जो अनस्टेबल प्रोडक्ट है इसकी रीअरेंजमेंट होती है टू गिव अस CH3 CHO plus water. Right? Okay. अब अगर हमारे पास इसकी जगह ये वाला कंपाउंड है, क्या नाम आएगा इसका? 2,2 डाइफ्लोरोप्रोपेन। इसके साथ हम एक्वस KOH की रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? CH3 OH NOH। ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल गया तो ये हमें क्या दे रहा है? ये यहां चला जाएगा, CH3 CH3 double bond O plus H2O. Okay, so this is the common methods of preparation of both aldehydes and ketones.
नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली एंड प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली वाला मेथड करेंगे।